Today we are conducting this webinar to spread awareness about domestic violence. Okay, so it is a matter of record, and I'm sure that you all must be aware that incident of domestic violence has increased tremendously. So it's a parallel pandemic since victims are trapped with their abusers, and it is not possible in this due to this pandemic. It is not possible for them to go and approach court and NGOs or police officers. So under these circumstances, we are conducting this webinar through Inside Bharat to spread awareness. Since it's a matter of experience that whenever women is aware of her legal rights and well informed, such awareness has worked as deterrent against domestic violence. So I hope this session with our guest Sidvidya, Advocate Sidvidya, would be an informative session for all of us. Now, let me tell all the participants that this session would continue for an hour. Our guest would appraise you all about existing law to deal with domestic violence. Thereafter, we may have short interactive session. So our participants, if you want to ask any questions, please drop it in the chat box. And now, before we begin with the lecture and with the session, I request, let me just introduce you to our guest. She pursued her LLB at Banaras Hindu University and studied human rights as a LLM course from University of Birmingham, United Kingdom. Thereafter, she worked with various reputed law firms in Delhi and Mumbai. Now she presently is practicing in Mumbai. She has vast experience of matters related to women and child welfare. She has participated in various PL, and she is highly interested in matters related to environment and animal protection. So with immense pleasure, I request Sidvidya ma'am to enlighten us on this topic. Thank you so much, Sujit. Can you hear me? Yes, we can hear you. Am I audible? Yes. Thank you so much to the team of Inside Bharat, and I extend my thanks to all the viewers also who have joined for this session. Today we are going to discuss a very sensitive issue, that is domestic violence against women. Domestic violence against women is a global phenomenon. As we all know well, that there has been a horrifying surge in the number of complaints or the violence directed to women and girls during this pandemic. And perhaps that's the reason that the chief of the United Nations has to come forward, and he has to address and direct all the member states, including India, that you have to take certain measures to ensure that the woman who is locked inside the houses with the abusers, with the preparators, some kind of help reaches to them, and certain measures has to be taken in this regard. Therefore, we have taken this issue, and I extend my thanks to Inside Bharat for addressing this issue and giving a platform to speak about it, because there are many women who are suffering, and and this is a matter of record and experience, as the Sujit and the host rightly said, that awareness at times works as a deterrent. So if a woman is aware about the rights, she is better protected. So our session is intending to spread awareness, and that awareness will definitely give a kind of strength to the woman to fight against injustice. Well, it is हमारा जो समाज है उसमें तो हमारे यहाँ पे देवी औरतों की पूजा भी होती है, देवी मानते हैं उनको, एंड वी ऑलवेज से, आपने भी सुना होगा कि हम हमेशा बहुत प्राइडली कहते हैं कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहाँ नारी का वास है वहाँ, मतलब जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास है. But unfortunately, we have to have a kind of law which deals with the domestic violence, means such kind of violences which are happening within the four walls, within the houses. So you can imagine, though हमारे समाज की परिकल्पना इतनी अच्छी है कि नारी की पूजा करनी चाहिए, but उसी समाज में हमें एक ऐसा लॉ बनाना पड़ता है जिसमें नारी को घर के अंदर कैसे प्रोटेक्ट किया जाए. You forget about outside. She has to be protected even from the abusers and the preparators who are within the houses. Right? And I firmly believe that किसी भी समाज को, किसी भी देश को अगर समझना है या उनके problems को जानना है, तो you have to look into the laws. The law of a nation or a society reflects the society, right? So हमारे यहाँ पे सती प्रथा abolition act है, हमारे यहाँ पे child marriage act है, child marriage prohibition act है, हमारे यहाँ पे act बना हुआ है कि sex determination नहीं करना है, right?
एसिड अटैक्स के लिए कानून बने हुए हैं, पॉस्को है जिसमें छोटी बच्चियों के साथ रेप हो जाता है एंड उनके साथ अब्यूजेस होते हैं, सेक्सुअल अब्यूजेस, उसको डील करने के लिए लॉ बने हैं। वी हैव डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑल्सो। सो जब हमारे यहाँ समाज में ये सारे लॉ बने हुए हैं तो ये हमारे समाज की बुराइयों को क्लियरली दिखाता है कि व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज आर सोसाइटी फेसिंग, और हमारे समाज में क्या क्या गंदगी है। करेक्ट। अभी फॉर एग्जाम्पल और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि वुमन के खिलाफ जो वायलेंस होता है उसमें एक वायलेंस है वुमन को चुड़ैल बता करके उसकी हंटिंग करना। Perhaps many of the viewers must not have heard about this witch hunting and all that, but अभी भी remote areas में वुमन के खिलाफ इतना इंटॉलरेंट है समाज कि औरतों को चुड़ैल बताकर उनको मार दिया जाए। सो और हमें अभी रिसेंटली विच हंटिंग प्रोहिबिशन लॉ बनाना पड़ा। 2-3 साल पहले आया था। आई एम नॉट अवेयर अबाउट द करंट स्टेटस, पर ये बिल पास हुआ था। तो दिस शोज दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर एग्जिस्टिंग इन आवर सोसाइटी। अब ये प्रॉब्लम्स क्यों आए, कहाँ से आए, क्योंकि हमारा समाज तो ऐसा था नहीं, यहाँ तो नारी की पूजा होती थी। दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑल टुगेदर एंड दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट टुडे हियर टू डील विद। नाउ व्हाट आई मीन टू कम्युनिकेट इज हर इंडिया में ये प्रॉब्लम है सती प्रथा की। देयर मे बी सर्टेन अदर प्रॉब्लम इन यूके। यू वोंट फाइंड दिस काइंड ऑफ लॉ, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट इन यूके एंड यूएस। यू माइट फाइंड सम अदर लॉज, राइट, जिससे वहां के समाज में क्या प्रॉब्लम है वो दिखता है। सो फार एज द विच हंटिंग इज कंसर्न, विच वाला प्रॉब्लम तो यू विल बी सरप्राइज कि यूरोप और यूके और सब बाकी इन देशों में भी एग्जिस्ट कर रहा था। अभी उन लोगों को शायद उन्होंने रिपील कर दिया होगा बिकॉज नाउ इट्स नॉट एग्जिस्टिंग एनी मोर, बट हियर वी हैव दैट लॉ दैट शोज दैट वी हैव दिस प्रॉब्लम। सो जो ये प्रॉब्लम्स हैं वुमन रिलेटेड वो डिफर करते हैं देश अपने समाज में, देश में। बट व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस इज कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का प्रॉब्लम है ये कोई this has nothing to do with a particular country or a particular strata of the society or a particular class of the society, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो अमेरिका में रहता हो, नेपाल में रहता हो, पाकिस्तान में रहती हो वो औरत, everywhere woman is subjected to domestic violence, and perhaps that is the reason you will find prohibition or protection of women from domestic violence act kind of law everywhere in the world, because it's a global phenomena. So you can understand what कितना बड़ा है ये प्रॉब्लम। और एज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड इन द सर्वे पूरी दुनिया में एवरी थर्ड वुमन इज सब्जेक्टेड टू सम अदर काइंड ऑफ अब्यूजेस। हो सकता है जगह स्थान की वजह से या उस सोसाइटी की वजह से उसके नेचर में चेंज हो जाता है, बट डेफिनेटली शी इज सब्जेक्टेड टू सम अदर काइंड ऑफ अब्यूजेस। परहैप्स दैट वाज द रीजन कि इतना बड़ी चीज है ये। आपको डोमेस्टिक वायलेंस जो घरों के अंदर में होता है वो कभी बहुत सीवियर भी होता है, कभी बहुत छोटी सी बात भी होती है। सो वो बहुत ट्रिवियल भी आपको लग सकता है, बट अगर एक औरत को या एक वुमन को एवरी डे शी हैज टू फेस सम और अदर काइंड ऑफ वायलेंस, इट मे अब्यूज इज राइट, इट मे बी फिजिकल, इट मे बी वर्बल, इट मे बी इकोनॉमिक एंड ऑल दैट। तो अदरवाइज तो ये बहुत ट्रिवियल लगती हैं चीजें कि ठीक है किसी को अगर आपने 2-4 बातें बोल ही दी या कभी साल में 1-2 झापड़ लगा दिया तो इट डजंट मैटर, ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि उसके लिए इतना हवा किया जाए। But if you see from the point of view कि जब एक औरत को every day she has been subjected to some other kind of abuse, चाहे वो छोटा ही हो, तो basically you are taking away her right to live with dignity. तो ये हमारा fundamental right है। This is a fundamental right to live, और ये life जो है fundamental right जो हमारा है उसमें सिर्फ ये परिकल्पना नहीं है कि आप बस आपके शरीर के ऊपर कोई चोट ना लगे और बस आपको राइट टू लाइफ मिल गया है, तो आपको राइट जीने का अधिकार जो है वो इट इज उसके साथ डिग्निटी जुड़ी होनी चाहिए। तो व्हेनेवर अ वुमन इज सब्जेक्टेड टू हैरेसमेंट एनीवेयर और अब्यूजेस विद इन द सोसाइटी, तो भले ही वो ट्रिवियल चीजें हों बट डेफिनेटली इट टेक्स अवे हर राइट टू लिव विद डिग्निटी। सो आई मीन टू से दैट दिस इज डेफिनेटली अ मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट्स का सब्जेक्ट है ये। एंड इसी कारण से इंटरनेशनली इस चीज को, ग्लोबली इस चीज को आइडेंटिफाई किया गया, इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया गया एंड इंटरनेशनल फोरम पे डिक्लेयर किया गया लाइक यूनाइटेड नेशंस एंड ऑल दैट एवरी स्टेट, मेंबर स्टेट लाइक इंडिया भी इसका मेंबर स्टेट है, एवरी मेंबर स्टेट हैज टू एंश्योर दैट द वुमन इज प्रोटेक्टेड विद इन द फोर वॉल्स आल्सो, और उसको अपनी डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार। करेक्ट। तो इस मैंडेट के साथ हमारे यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में बना।
अभी वुमन के खिलाफ तो बहुत सारे ऑफेंसेस हैं, देयर आर मेनी ऑफेंसेस, काउंटलेस ऑफेंसेस हो सकते हैं, एसिड अटैक हो सकता है, रेप हो सकता है, सो मेनी थिंग्स। तो उसके लिए आप परपेट्रेटर्स को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, क्रिमिनली आप प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। बट वो जो ऑफेंसेस जो छोटे हैं, जो घरों में होता है, और प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी बड़े ऑफेंसेस भी होते हैं घरों में, लेकिन फिर भी द वुमन डजंट वांट टू प्रोसिक्यूट द परपेट्रेटर फॉर द रीजन दैट अगर उसको ये डर होता है कि अगर परपेट्रेटर्स के खिलाफ कोई बड़ा स्टेप्स लेंगे तो शायद मेरी फैमिली ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो बेसिकली इंटेंशन ये नहीं होता है कि हाउ टू प्रोसिक्यूट अ पर्सन, द मेन कंसर्न ऑफ अ वुमन कि कैसे मैं कैसे ऐसी ऐसा ऐसा कुछ किया जाए कि मेरी फैमिली भी ना टूटे और प्रिपेटर भी को भी एक डिटरेंट मिल जाए। तो पहले तो जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस के लिए, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सिवियर ऑफेंसेस में हो सकते हैं, और जो छोटे वाले ऑफेंसेस हैं, मतलब जो घरों के अंदर छोटी मोटी चीजें हो रही हैं, उसके लिए भी वुमन को कुछ सिविल राइट्स मिलने चाहिए जो एक डिटरेंट का काम करे, साथ ही साथ वुमन का वेलफेयर भी हो जाए। और उससे एक और चीज इंश्योर की जाए कि कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर वुमन को लगता है कि रिकंसाइल हो जाना चाहिए, सेटलमेंट होना चाहिए, तो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सेटलमेंट, राइट। तो आप हर प्रिपेटर को, जब सपोज बाहर आप जा रहे हैं, बाहर आपके साथ कोई वायलेंस हुआ, तो वुमन कैन डेफिनेटली उसमें इमीडिएटली कोई स्टेप ले सकती है। वो ये झिझक नहीं होगी कि व्हाट इज टू बी डन, हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम एंड ऑल दैट। इस वो आदमी को मैं प्रोसिक्यूट करूं कि नहीं करूं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा इसको प्रोसिक्यूट करने से मेरी फैमिली पे कोई इफेक्ट होगा। बट जब घर में वही ऑफेंसेस होते हैं तो शी हैज ऑल दोस कंसर्न्स इन हर माइंड। तो इसलिए ये पर्टिकुलर एक्ट लाया गया कि वुमन को अगर वो क्रिमिनली किसी को प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहती है या करना चाहती है, तो उसके पास दोनों ऑप्शंस हैं, या तो क्रिमिनली प्रोसिक्यूट कीजिए अगर सीरियस ऑफेंसेस हो रहे हैं, तो इफ यू डोंट वांट टू डू दैट आप ये कीजिए, या आप दोनों ही कर सकते हैं। और सिविल राइट, सिविल जो ये सिविल लॉ है, इसमें सिविल राइट्स हैं आपके, इसमें आपको कॉम्पनसेशन मिल सकता है, इसमें आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है, इसमें कुछ डिटरेंट ऐसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि जो प्रिपरेटर्स के लिए डिटरेंट हो और उसको एक सबक मिल जाएगा, और एट द सेम टाइम कुछ इतना बड़ा नहीं हो जाएगा कि आप कभी भी रिकंसाइल ना कर सकें। सो ये इस एक्ट की, इसलिए इस इंटेंशन से ये एक्ट बनाया गया। नाउ बिफोर ये लॉ बनाया गया, now before going into the law I will try to deal with everything briefly because there's a time constraint. I can't, there's so many things to be told, there's so many informations that to be passed, but there's a time constraint, so I have to briefly praise you and hopefully that would be informative, and आगे कुछ जानना चाहे तो we can communicate later. So before going into the law and the existing procedures and all, I would definitely like to talk about certain misconceptions. कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो समाज में हम एग्जिस्ट करते हैं और जिसके कारण वुमन को बहुत परेशानी होती है। शी हैज टू गिव 100 थॉट्स बिफोर टेकिंग एनी स्टेप्स। पहला मिसकंसेप्शन तो ये है कि जो घरों में मारपीट कभी कभी होती है वो बहुत छोटा सा इशू है, दैट इज नॉट अ बिग इशू टू डील विद, राइट। एक दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि ये जो वायलेंस होता है वो अनकंडीशनल है, सॉरी अनइंटेंशनल है। मतलब वो किसी इंटेंशन से नहीं मारा गया, वो तो हस्बैंड को थोड़ा गुस्सा आ गया किसी घर वालों को तो उसने मार दिया। इट इज नथिंग, नॉट अ बिग डील टू डिस्कस। और तीसरा एक मिसकंसेप्शन है कि वायलेंस इसलिए हुआ क्योंकि आदमी जो था वो उसने शराब पी रखी। तो ये भी औरतों को बताया जाता है और सुबह उठ के हस्बैंड या जो भी प्रिपरेटर है वो माफी मांग लेता है, एंड देन ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वुमन तो उसको भूल जाएगी एंड शी हैज टू मूव ऑन, क्योंकि ये तो छोटी मोटी बातें घरों में होती ही रहती हैं, इसमें कोई बड़ा डील नहीं है। और अगर आपने इसको बड़ा बनाने की कोशिश की तो इमीडिएटली यू आर बीइंग अक्यूज्ड ऑफ कि आप छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाते हैं। सो वुमन को हमेशा ये ट्रेनिंग दी जाती है बचपन से कि यू हैव टू टॉलरेट ऑल दिस, राइट। तो जब भी बच्ची होती है तो उसको ये बताया जाता है कि आपको ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, आपको ये करना है, आपको ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, यू हैव टू गो टू अ डिफरेंट फैमिली और आपको सबके साथ एडजस्ट होके रहना है, यू हैव टू टॉलरेट कोई बोल भी दे। बट हार्डली आई हैव सीन एनी फैमिली, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बच्चियों को ये सिखाते हैं कि आपकी ड्यूटीज तो ये हैं बट उसके साथ आपकी राइट्स भी हैं, बिकॉज ड्यूटीज और राइट्स दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर किसी समाज में एक औरत के राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, तो उसके राइट्स भी होने चाहिए, तभी उस समाज, अच्छे समाज की परिकल्पना की जा सकती है। सो जब भी आपको ये बताया जाए कि ये छोटी बातें हैं तो डोंट एक्सेप्ट दैट नॉनसेंस। वो छोटी बात नहीं है, ये आज छोटी बात है, कल को बड़ी बात हो जाएगी। सो जिस दिन आपके साथ पहला वायलेंस हो, द सेम डे द वुमन हैज टू से नो, अ बिग नो। अगर आपने उस दिन वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी
So that simply means you are giving a license to abuse you to your preparators. और मैक्सिमम केसेस जो हमारे पास आते हैं या हम लोग डील करते हैं उसमें यही देखते हैं. शुरू में वुमन के साथ जो हुआ तो उसने सोचा फैमिली को बचाना है, बच्चों की परवरिश करनी है और इससे तो निकलने का कोई रास्ता नहीं है, सो आई हैव टू सकम टू ऑल दिस. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. I hope I'll be able to cover all the issues in such a short time frame, but maybe because suppose आपके हस्बैंड ने जो कहा जाता है दारू के नशे में उसने मार दिया. सपोज आपका हस्बैंड या कोई आदमी शराब पी के घर आ रहा हो, रात में उसको एक हवलदार मिल जाए और हवलदार ने उसको टोक दिया या उसको कुछ बोल दिया बुरा भला, तो आपको लगता है, हैव यू एवर हर्ड कि दारू के नशे में उसने हवलदार को पीट दिया? या घर आने पर अगर उसके फादर ने उसको पूछ लिया, राइट, तो वो उस समय भी पीटता. मैंने नहीं सुना है कि there may be certain exceptional cases, but generally ऐसा नहीं होता है. Why? Because even in शराब के नशे में भी उस आदमी को ये पता होता है कि किसको वो मार सकता है, किसको नहीं मार सकता है. So he will always target a vulnerable person. और चूंकि आपको उसने मार के ट्राई किया है, so that excuse works with you. तो अगर आपने ये जो इंटेंशनल नहीं होता, दिस इज अ वेरी रॉन्ग परसेप्शन. वो हमेशा इंटेंशनल होता है. एंड ये भी परसेप्शन बहुत गलत है कि आप डोमेस्टिक वायलेंस से बाहर नहीं आ सकते हैं और आपको ये अगर फैमिली चलानी है तो आपको ये सब बर्दाश्त करना ही पड़ेगा. नो, दिस इज नॉट करेक्ट अप्रोच. तो मेरा ये कहना है कि अपने अधिकार ड्यूटीज के साथ आप सारी ड्यूटीज परफॉर्म कीजिए जो आपकी ड्यूटीज है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी अवेयर अबाउट योर राइट्स आल्सो, राइट. जब भी आपको जब अगर अपने राइट्स पता होंगे तो डेफिनेटली ये एक डिटरेंट जैसा काम करता है और आप अपने राइट्स लोगों को बताने भी है कि ये मेरे अधिकार हैं. सो विद दिस इंटेंशन वी हैव स्टार्टेड दिस. सो कभी भी ये परसेप्शन अपने दिमाग में मत रखिए कि इंटेंशनल नहीं है, ये हमेशा इंटेंशनल है. And this is you who has to stop it. Now, what is the law? The law is हमारे यहाँ पे जो लॉ है वो उसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2005. 5 चैप्टर्स है इसके अंदर. बहुत ही अच्छा लॉ है, वुमेन ओरिएंटेड लॉ है, वेलफेयर लेजिस्लेशन है. इसका पर्पस ये है कि वुमेन का वेलफेयर सिक्योर किया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि वुमेन को किसी टाइप का हैरेसमेंट ना हो और अगर हो तो उसको सम काइंड ऑफ रिलीफ हो भी गिवन. नाउ देयर आर 5 चैप्टर्स इन दैट. द फर्स्ट चैप्टर डील्स विद प्रिलिमिनरी जो डेफिनेशंस वगैरह होते हैं, कौन है अग्रीव्ड पर्सन, कौन है, उससे आपको ये आंसर्स मिलते हैं, कौन फाइल कर सकता है, किसके अगेंस्ट फाइल कर सकता है एंड ऑल दैट. जो सेकंड चैप्टर है उसमें डोमेस्टिक वायलेंस किसको कहते हैं ये बताया गया है. सो व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस? डोमेस्टिक वायलेंस कानून जानने के पहले आपको ये जानना जरूरी है कि डोमेस्टिक वायलेंस कहते किसको. डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा एक्ट, ओमिशन या कमीशन और कॉन्डक्ट जो रेस्पोंडेंट का या अब्यूजर का, प्रिपरेटर का जो है, जिससे वुमन को किसी भी टाइप का फिजिकल या इमोशनल या इकोनॉमिक किसी भी टाइप का हार्म होता है, उसको वो सब कुछ डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर में आ सकता है. The definition of domestic violence is extremely wide. Yeah, as an inclusive definition, inclusive है, मतलब इसमें और चीजों को ऐड किया जा सकता है. जैसे फिजिकल वायलेंस है, उसमें बीटिंग, स्लैपिंग, हिटिंग, किकिंग, पंचिंग, पुशिंग, ये सब तो आता ही है. और लास्ट में ये है कि कोई भी बॉडीली पेन या इंजरी जो है दैट इज फिजिकल अब्यूज. कोई भी बॉडीली पेन, बहुत बार ऐसा होता है, हमने एक्सपीरियंस किया है कि रेस्पोंडेंट्स इतने क्लेवर होते हैं या प्रिपरेटर कि वो नहीं चाहता है कि आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी मार्क दिखाई दे, राइट. तो आई वुड लाइक टू शेयर वन इंसिडेंट. हमारे एक मैटर में देयर वाज अ वुमन हु वाज 4 month, a girl who was 4 month pregnant. उसके जो रेस्पोंडेंट्स थे, उसके घर वाले, ससुराल वाले, वो शी वाज वर्किंग अब्रॉड और वहां से उसको लेकर पंजाब आए थे. एंड दे वर अवेयर कि अगर उसके बॉडी पे एक भी मार्क दिखा तो परहैप्स उसके घर वाले लोग ऑब्जेक्शंस करेंगे. दे विल गेट टू नो बिकॉज़ वुमन वाज नॉट इवन सपोज्ड टू मीट देयर पेरेंट्स एंड ऑल दैट. वो आती थी बट दूर से ही उनको दिखा दिया गया. उसमें उन्होंने क्या किया कि दे वर नॉट हिटिंग हर, उन्होंने उसको टच भी नहीं किया, बट दे यूज्ड टू मेक हर स्टैंड ऑन वन फीट फॉर आवर्स. And by doing this, they wanted to ensure कि उसका miscarriage हो जाए. So therefore, आप legislature कोई define नहीं कर सकता कैसे उसको
किसको आप डोमेस्टिक वायलेंस बोलेंगे, कैसे हिट किया जाएगा। बट बात इतनी सी है समझने की कि कोई भी ऐसा काम जिससे इंजरी कॉज हो रही है, बॉडीली पेन या इंजरी, वो सब डोमेस्टिक फिजिकल अब्यूज के अंदर में आते हैं। करेक्ट। द नेक्स्ट इज सेक्सुअल अब्यूज। सेक्सुअल अब्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हमारे यहाँ पे कोई मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, so if a woman goes outside and somebody does anything forcefully on her of sexual nature, तो उसके खिलाफ वो immediately पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रेज कर सकती है, लॉन्च कर सकती है, and that can be treated, that he can be prosecuted. But you consider a position जहाँ पे आपका हस्बैंड से बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, you don't even want to, you are scared of him, and वो आकर के आपके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स फोर्सफुली करता है, या आपको पोर्न दिखा रहा है, या आपको कोई भी ऐसी चीज दिखा रहा है जिससे आपकी डिग्निटी डिग्रेड हो रही है, राइट? तो दिस इज ऑल इंक्लूडेड इनटू सेक्सुअल हैरेसमेंट। वुमन को तो पता ही नहीं होता है, बाहर जो हो रहा है उसके खिलाफ तो आप कंप्लेंट रेज कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, बट जब घर में हो रहा है उसके खिलाफ क्या किया जाए? So she feels most of the time completely clueless what is to be done against the husband. तो आप हस्बैंड के खिलाफ भी, मतलब इसको भी फिजिकल, इसको सेक्सुअल अब्यूज कंसीडर किया जाता है, और इसमें आपको रिलीफ क्या मिलेगा? You can inform the court कि this all is happening and this is how I am being subjected to violence, sexual violence. उसमें हो सकता है कोर्ट को अगर लगे कि हाँ ये प्राइमा फेसी केस है और इसमें जेन्युइन मैटर है, तो कोर्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर दे सकती है। हमारी ये क्लाइंट है, I come across a lady, it was a very peculiar case, जिसमें उनका हस्बैंड हमेशा गन रख करके force her to get into intercourse and all that. तो वो उस मैटर में when the woman approached the court, तो कोर्ट ने immediately उनको प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया, and even till date the husband is not able to enter that house, right? तो ये आपके हो गए, ये हो गया सेक्सुअल अब्यूज। नेक्स्ट जो अब्यूज है वो इमोशनल वर्बल अब्यूज है। ये कहने की बात नहीं है, एवरीबडी हैज कम अक्रॉस द सिचुएशन। अगर लड़का पैदा नहीं हो रहा है तो भी लोग अक्यूज करते हैं वुमन को, कभी कभी उसको टॉन्ट करते हैं कि आप डाउरी लेके नहीं आए, मे बी मेनी थिंग्स। कभी आप उसके माँ बाप से उनको मिलने नहीं देते जिनसे वो नॉर्मल कोर्स में मिल सकती थी, या यू आर एक्चुअली not allowing her to go to her employment place and all that। तो बहुत टाइप के इमोशनल अब्यूज हो सकते हैं जिससे भी आपको इमोशनली हर्ट होता है, वो सब इस अब्यूज के अंदर में आते हैं। नाउ वी हैव टाइम हमारे पास उतना नहीं है, सो वी वोंट गो वन बाय वन, बट जस्ट टू बेसिक अंडरस्टैंडिंग दीज आर द थिंग्स। देयर आफ्टर इकोनॉमिक अब्यूज। इकोनॉमिक अब्यूज में यू आर नॉट गिविंग हर बेसिक मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मींस उसको अगर एक छोटी सी चीज भी खरीदनी है तो शी हैज टू बेग इन फ्रंट ऑफ द प्रोप्राइटर्स, रेस्पोंडेंट या हस्बैंड के सामने बेगिंग करना है, और या फिर उसको काम पे जाने ही, उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं करने देना है, या अगर वो कमा के लाती है तो सब कुछ छीन लेना है। एंड एक और टाइप का इकोनॉमिक वायलेंस होता है जिसमें घर के सब लोग तो वो सामान यूज कर सकते हैं, जैसे सपोज आपके घर में कोई चीज है, सपोज व्हीकल है, गाड़ी है, everybody can use that car, but that woman cannot use that car. There have been certain cases of like this nature. तो ये सब इकोनॉमिक वायलेंस में आते हैं। Now these are the basic things। मतलब ये सेक्सुअल आपका डोमेस्टिक वायलेंस या डोमेस्टिक अब्यूज जिसको कहते हैं, वो ये सब नेचर के हो सकते हैं, और इन सब चीजों के खिलाफ आप रिलीफ पा सकते हैं। किस टाइप के रिलीफ? सिविल रिलीफ मिलता है, मतलब आपको उसमें कुछ प्रोटेक्शन मिल जाएगा, इसमें किसी को जेल नहीं होगी, राइट? जो प्रोपरेटर्स है उसके लिए उसको जेल के पीछे नहीं भेजा जाएगा, सलाखों के पीछे, या उसको फांसी नहीं दे दी जाएगी, बट कुछ ऐसा उसमें आपको कॉम्पनसेशन मिल सकता है, आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल सकता है, आपको रेसिडेंस ऑर्डर मिल सकता है। तो आपके प्रोटेक्शन के लिए जो चीजें जरूरी है वो हो सकता है। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको जेल तो नहीं होगी क्योंकि आपने ऐसा किया है, क्योंकि लेकिन अगर आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर आपके फेवर में आया है एंड द हस्बैंड और द प्रोपरेटर हैज बीन डायरेक्टेड to not to enter the house and not to do particular thing, but despite that he is indulging into that kind of activity, फिर भी वो करता है, in that case उसको punishment, उसको जेल भी हो सकती है। So you understand, उसको सीधा वो काम करने के लिए जेल नहीं होगी, बट वो ऑर्डर को वायलेट करने के लिए डेफिनेटली जेल हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑर्डर क्या मिलेगा? आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलेगा, रादर रेस्पोंडेंट को डायरेक्ट कर दिया जाएगा कि आप घर में नहीं घुसेंगे, और फिर भी अगर वो आते हैं, if he enters, in fact अंदर ही नहीं आएगा, but if he does so, in that case he can be prosecuted
और उसमें 1 साल की पनिशमेंट है और 20,000 का कुछ फाइन। तो ये किया जा सकता है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की कि प्रोटेक्शन जो आप ऑर्डर पास हुआ, उसमें अगर हस्बैंड ने प्रोटेक्शन ऑर्डर ब्रीच किया है तो वाइफ को क्या करना पड़ेगा? तो क्या करना, वो हाउ टू प्रूव? तो प्लीज अंडरस्टैंड, प्रोटेक्शन ऑर्डर ब्रीच हुआ है, इसको आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं। सोल टेस्टिमनी ऑफ द वुमन, अगर आपने जाके टेस्टिमनी दी कोर्ट में, ये प्रोटेक्शन ऑर्डर पास हुआ था और उन्होंने ब्रीच किया है, तो इमीडिएटली वो ऑफेंस बन जाता है। इट्स अ कॉग्निजेबल एंड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, राइट? एंड फॉर दैट ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड। सो ये प्रोटेक्शन, तो आपके साथ अगर सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है या कोई भी अब्यूज इस टाइप का हो रहा है, आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल गया है, आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर कौन से सेक्शन में मिलेगा वो मैं आपको आगे बताऊँ। तो दैट कैन हैपन। सो इसलिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्ट है और वुमन ओरिएंटेड लॉ है। नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट कि ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस तो इसको कहते हैं, बट डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस कौन फाइल कर सकता है? किसके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस फाइल हो सकते हैं, कहाँ फाइल हो सकते हैं, कब फाइल हो सकते हैं, किसको अप्रोच किया जाए? दीज आर द क्वेश्चन आर डेफिनेटली to approach, who wants to pursue. तो इसमें जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कौन कर सकता है, उसको जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि अग्रीव्ड पर्सन का डेफिनेशन दिया हुआ है और अग्रीव्ड पर्सन ही डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकता है। अब अग्रीव्ड पर्सन किसको कहते हैं? अग्रीव्ड पर्सन इज डिफाइंड, अग्रीव्ड पर्सन एक ऐसी वुमन है जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहती है, कहाँ? शेयर हाउस होल्ड में, राइट? और उसके साथ कोई ना कोई अब्यूज हुआ है, जो मैंने आपको अभी बताया, या तो वो इमोशनल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, एनी काइंड ऑफ अब्यूज which has happened to that woman who is into domestic relationship and who has been sharing her accommodation, share household में। अभी ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप किसको कहते हैं? हेलो, Yes, ma'am. कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. So what is domestic relationship? डोमेस्टिक रिलेशनशिप उसको कहते हैं अगर कोई औरत ब्लड रिलेटिव हो, मतलब उसका संबंध आपके साथ, जो प्रिपरेटर्स है उसके साथ खून के कारण हो, ब्लड के कारण हो, या शादी के कारण हो, या अडॉप्शन के कारण हो, या इस कारण से हो कि वो मैरिज लाइक रिलेशनशिप में है, जैसे इसी में लिविंग इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आता है। सो एनी वुमन हु इज, आप या तो आपकी ब्लड से कनेक्टेड है, प्रिपरेटर्स के ब्लड रिलेटिव है या समथिंग, या शादी के कारण उसका कोई संबंध है, या वो अडॉप्शन के कारण अडॉप्टेड डॉटर है या कोई है, या फिर उसका जो है मैरिज लाइफ रिलेशनशिप के कारण कोई संबंध है, तो फिर वो रिलेशनशिप माना जाता है। सपोज मैं अगर मैं किसी घर में रहती हूँ, तो मैं अगर बेटी हूँ और तो मैं अपने माँ बाप के खिलाफ या अपने पिताजी के खिलाफ या अपने भाई के खिलाफ भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ब्लड रिलेटिव हूँ। मतलब उसको एक इस तरह से भी देखा जा सकता है ना। यू मस्ट हैव, किसके खिलाफ किया जा सकता है? जो डेफिनेशन है वो कहता है कि रेस्पोंडेंट किसको कहते हैं इस मैटर में? रेस्पोंडेंट इज अ मेल एडल्ट। रेस्पोंडेंट जो है वो मेल एडल्ट है, मतलब माइनर जो माइनर है उसके खिलाफ डीवी में कोई आप डीवी का केस नहीं कर सकते, उसके लिए अलग फोरम है। ऐसा नहीं है कि वो माइनर है और 17 साल का आपके साथ कुछ भी कर दिया तो देयर इज नो रिकॉर्ड, बट उसके लिए डिफरेंट फोरम है। डीवी में आप सिविल राइट्स उसके में सिविल जो मैटर है वो आप डीवी का मैटर उसके खिलाफ नहीं कर सकते। अब उसमें एक प्रोविजो है, यू मस्ट हैव सीन कि बहुत सारे केसेस मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ, अरे मदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ के खिलाफ भी हो जाते हैं। उसका रीजन ये है कि जो किसके खिलाफ आप केस कर सकते हैं, उसमें एक प्रोविजो है कि अगर मैरिड वुमन है, सपोज एक बहू है वो या मैरिड वुमन है, तो वो जब केस करती है तो वो सिर्फ मेल एडल्ट के खिलाफ ही नहीं कर सकती है, अपना राइट्स असर्ट कर सकती है, बल्कि अगर वो मैरिड है तो वो अपने हस्बैंड के रिलेटिव्स, या अगर वो लिविंग इन रिलेशनशिप में है तो जो मेल पार्टनर है उनके रिलेटिव्स के खिलाफ भी केसेस कर सकती है। Therefore, you will see that the mother-in-law and the sister-in-law are the respondents in the cases which are filed by daughter-in-law. तो ये केस कर सकते हैं। Now the question arises कि शेयर हाउस, अब ये आपको मैंने डोमेस्टिक रिलेशंस बता दिया। I also told you about the respondent and who can file and all that. Now, what is share household?
जो शेयर हाउस होल्ड है उसका डेफिनेशन बहुत वाइड है, शेयर फॉर द पर्पज ऑफ asserting your right under DV Act. शेयर हाउस होल्ड में वो चाहे जिस भी घर में वो वुमन रह रही थी, इसके साथ जिन जो रेस्पोंडेंट्स के साथ जिनके साथ उनका खून का रिश्ता है या मैरिज का रिश्ता है या अडॉप्शन का रिश्ता है या मैरिज लाइक रिलेशनशिप है, वो वहां पे रह रही थी शेयर हाउस होल्ड में, तो या तो रेंट पे हो या अपना हो या उसमें उसके हस्बैंड का शेयर हो या ना हो या वुमन का कोई शेयर हो या ना हो, इट डजंट मैटर, शी हैज ऑल द राइट टू स्टे इन दैट शेयर हाउस होल्ड। तो ये वो शेयर हाउस होल्ड का डेफिनेशन है, उसको शेयर हाउस होल्ड माना जाएगा और फिर बाद में वुमन को ये राइट है कि वो शेयर हाउस होल्ड से उसको कोई नहीं निकाल सकता, मतलब अनलेस कोई और प्रोसीजर है या कुछ और चीजें उसको कंसिडर किया जा सकता है, बट डीवी के अंदर में ये प्रोविजन है कि वुमन का राइट है शेयर हाउस होल्ड। Now, the third chapter is this DV Act. शॉर्ट में इसको मैं DV Act बोल रही हूँ 2005। उस थर्ड चैप्टर में बहुत सारे ड्यूटीज की बात की गई है। किसकी ड्यूटीज? दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस एक्ट। मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी, और किसकी ड्यूटी? प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी, और किसकी ड्यूटी? पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी, एंड द ड्यूटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। सो बेसिकली जो चैप्टर 3 है दैट टॉक्स अबाउट द ड्यूटीज। मैजिस्ट्रेट को बहुत सारे पावर्स हैं इसके अंदर, कोर्ट मतलब जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में बैठते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास ये केसेस फाइल होते हैं, उनके पास बहुत सारे पावर हैं, बट एट द सेम टाइम वेरियस ड्यूटीज आर असाइंड टू ऑल दोज ऑफिसर्स इंक्लूडिंग द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट को भी ड्यूटी दी गई है। क्या ड्यूटीज है उनकी? ड्यूटीज ये है कि अगर कोई औरत आपके पास आती है और बताती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो ये उनका काम है, दिस इज देयर ड्यूटी टू इन्फॉर्म दैट लेडी अबाउट हर राइट्स। ये जानना हर विक्टिम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो दैट वुमन इज क्लूलेस, उसको पता नहीं होता है कि कहाँ जाए। जो पहली चीज दिमाग में उसके आती है वो ये आती है कोई एडवोकेट के पास चले, और अनफॉर्चुनेटली एडवोकेट्स के पास जाने पे उनको ये भी प्रॉब्लम होती है कि उनकी फीस कहाँ से अरेंज करें, क्या करें, तो वो रिलक्टेंट होते हैं। भले ही एडवोकेट्स, बहुत सारे एडवोकेट्स उनको हेल्प करते हैं, लेकिन फिर भी वो रिलक्टेंट होते हैं कि कैसे उनको अप्रोच करें। तो उनको क्या करना चाहिए, कहाँ फाइल करना चाहिए? एक्चुअली जो लॉ है वो इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि जब वुमन को सपोज रात को 2 बजे घर से बाहर निकाल दिया गया, तो आप वुमन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो सुबह कोर्ट जाएगी और लॉयर लेगी एंड शी विल फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट हर हस्बैंड एंड द परपेट्रेटर्स। उसके लिए ये प्रोविजन किए गए हैं कि शी कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट द प्रोटेक्शन ऑफिसर, राइट? प्रोटेक्शन ऑफिसर कहाँ मिलेगा? प्रोटेक्शन ऑफिसर इज अटैच्ड टू द पुलिस। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के नंबर होते हैं, या फिर आप ऑनलाइन इंटरनेट अगर आपके पास है तो यू कैन फाइंड आउट द प्रोटेक्शन ऑफिसर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, उसको आप फोन कीजिए। प्रोटेक्शन ऑफिसर इज अंडर ड्यूटी टू टेक योर फोन कॉल एट एनी पॉइंट ऑफ राइट। उसको आप मैसेज कीजिए, उसको इन्फॉर्म कीजिए, नहीं उठाता है तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर सकते हैं, या आपको कोई ऐसी जगह है पता है नियरेस्ट कहीं पे है जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो गवर्नमेंट नोटिफाइड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी वो उसके लिए भी प्रोविजंस है। उसकी लिस्ट भी प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास होती है। वो सर्विस प्रोवाइडर्स जो है शेल्टर होम्स मैनेज करते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, अगर छोटा बच्चा है साथ में तो उसके खाने पीने दूध की व्यवस्था हर चीज करने की जिम्मेवारी प्रोटेक्शन ऑफिसर की होती है। एंड सेकेंडली होम टू अप्रोच में अगर वुमन सुबह अगर मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में भी एंटर करके डायरेक्टली जाकर बोलती है सपोज कि योर ऑनर या सर मेरे साथ ऐसा हुआ है और मुझे पता नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो उसको इन्फॉर्म करे कि आपका ये अधिकार है और आपका लीगल एड पाने का भी अधिकार है, आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर दिया जा सकता है। तो ये सारी ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की बनती है कि वो उसको बताए। एंड हो सकता है मैजिस्ट्रेट आपको ये बोल दे कि आप एक छोटा सा एप्लीकेशन दे दो दैट आई कैन नॉट अफोर्ड एन एडवोकेट, मेरे पास कोई है नहीं रिप्रेजेंट करने को, तो मुझे लीगल एड दिया जाए। देयर मे बी द सिचुएशन की वुमन को पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, यू कैन इमेजिन ऑल दोस सिचुएशंस। तो उस कंडीशन में भी मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी बनती है कि वो प्रोटेक्शन ऑफिसर को बुलाए, वो इसको इंस्ट्रक्ट करे कि इनका केस फाइल करो, और आपके बिहाफ में प्रोटेक्शन ऑफिसर विल प्रिपेयर योर कंप्लेन and he would file on your behalf in the court of law. And protection officer के और भी functions हैं and magistrates को immense power दिए गए हैं इस एक्ट में कि वो depending on the circumstances, क्योंकि कोई भी legislature ये predict नहीं कर सकता कि कल को क्या प्रॉब्लम लेके वुमन आ जाएगी,
काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर एग्जिस्टिंग यू कांट इवन इमेजिन। तो इसलिए मैजिस्ट्रेट को इमेंस पावर दिए गए हैं। इनफैक्ट ये भी पावर दिया गया है कि आप अपना प्रोसीजर ले डाउन कर सकते हैं, इसलिए टू एंश्योर दैट द वुमन इज गिवन रिलीफ और उसको उसका वेलफेयर सिक्योर हो सके। तो मैजिस्ट्रेट को बहुत सारे पावर्स हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर के बहुत सारे ड्यूटीज हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाएगा, आपका मेडिकल कराएगा, बच्चे के लिए दूध खाने पीने की व्यवस्था करेगा, आपके लिए शेल्टर हाउस बनाएगा। और अगर कोई ऑर्डर आपके फेवर में पास हो गया सब कुछ 2 दिन बाद या कभी भी, in that case you can definitely contact your protection officer at any point of time to ensure that this particular order is complied with। क्योंकि अगर आप उस ऑर्डर के साथ जाएंगे, सपोज कोई ऑर्डर पास हो गया कि इस लेडी को घर में घुसने दो और आपको घुस नहीं दे रहे हैं, तो आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर को कांटेक्ट करके ले जाना है। प्रोटेक्शन ऑफिसर की one very interesting thing to be told is प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए भी एक चेक है। अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर आपकी बात नहीं मान रहा है या प्रोटेक्शन ऑफिसर काम नहीं कर रहा है एज पर द मैंडेट, इन दैट केस प्रोटेक्शन ऑफिसर कैन ऑल्सो बी प्रोसिक्यूटेड। प्रोटेक्शन ऑफिसर को प्रोसिक्यूट करने के लिए उसकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन लगता है। एंड देयरफॉर अगर ये प्रूफ हो गया कि देयर वाज अ डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी, देन द प्रोटेक्शन ऑफिसर कैन ऑल्सो बी पुट बिहाइंड द बार्स। उसमें 1 साल की पनिशमेंट है, 20,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है उसके ऊपर। सो ये सब चीजें जो है, एक तो मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के फंक्शन, और अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर ने काम नहीं किया डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी के लिए, उसके ऊपर जो चेक बनाया गया, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड। एंड अगर हर वुमन को ये पता हो कि उसके ये राइट्स हैं, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर आपको कभी नहीं घुमा सकता। आपको पता होना चाहिए कि उसकी ड्यूटीज है और ये कोई आपके ऊपर वो एहसान नहीं कर रहा है। Come on, don't think that he is doing आपको कोई फेवर कर रहा है। एक्चुअली उनको मिनिस्ट्री से बहुत सारा फंड्स आता है, राइट? प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी सैलरी मिलती है, और जो शेल्टर हाउसेस हैं उनको मेंटेन करने के लिए, वुमन को मेडिकल असिस्टेंस देने के लिए, उसको शेल्टर देने के लिए, सर्विस प्रोवाइडर्स को भी बहुत सारा पैसा आता है। सो यू डोंट हैव टू फील, आपको शाई होने की जरूरत नहीं है। ये आपका अधिकार है कि रात को अगर मान लो आपको घर से निकाल दिया गया, आप केस तो 2 दिन बाद फाइल होगा ना, अभी आप कहाँ जाएंगे? सो यू कैन कॉन्टेक्ट द प्रोटेक्शन ऑफिसर। अभी आप कैसे फाइल करेंगे? तो आप प्रोटेक्शन ऑफिसर को फोन कर सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर को ईमेल कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर को ईमेल कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन में फोन कर सकते हैं, और ये सब उनकी ड्यूटी है कि वो आपको असिस्ट करें। So you need to know about your right, that this is your right to be assisted by the protection officer, police officer, magistrate and the service provider, and they are not doing any favor to you, right? अभी आप कंप्लेंट कब करेंगे? क्या आप सच में जब आपको मारा जाएगा तब करेंगे, या सच में आपके साथ कुछ हो जाएगा तब करेंगे? और यू शुड वेट? नो, यू कैन वेट इवन इफ यू हैव एप्रीहेंशन कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आप एप्रीहेंड कर रहे हैं कि मेरे साथ कुछ होने वाला है, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन लॉज अ कंप्लेंट। अब कहाँ कंप्लेन करेंगे, जुरिस्डिक्शन क्या होगा? तो बहुत सारी जगह है जिसकी जुरिस्डिक्शन बनते हैं। आई थिंक वी कैन स्किप दैट थिंग। उसमें जहाँ पे वुमन रहती है, परमानेंटली रहती है, टेम्पररी रहती है। सपोज आप बेलापुर में रहते थे और आपके साथ कुछ हस्बैंड के घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई एंड यू हैव टू रश टू योर सिस्टर्स प्लेस एट खारघर, तो आप खारघर में भी कंप्लेन कर सकते हैं, राइट? तो उसमें बहुत सारी जगहों के जुरिस्डिक्शंस बनते हैं, या जहाँ रेस्पोंडेंट रहता है वहां कर सकते हैं, या जहाँ पे कि कुछ हुआ है इंसिडेंट, यू कैन ऑल्सो कंप्लेन देयर। तो जुरिस्डिक्शन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मैंने आपको ऑलरेडी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के फंक्शंस के बारे में बता दिया। ये उनके फंक्शंस हैं, आपको लीगल एड देना, सब कुछ देना, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको रिलीफ क्या मिलेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप क्या रिलीफ मांग सकते हैं प्रोटेक्शन डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर में, क्योंकि आप अपने घर के लोगों को जेल के पीछे नहीं डालना चाहते, और अगर जेल के पीछे डाल भी दिया तो उससे आपको कोई मॉनेटरी रिलीफ तो मिलेगा नहीं, आपको मेंटेनेंस तो मिलेगी नहीं। तो आप ठीक है, आपके साथ कोई बहुत बड़ा, सपोज आपके साथ डाउरी के लिए आपको टॉर्चर हो रहा है, इन दैट केस you can lodge a criminal complaint, but at the same time that doesn't mean you can't go for the DV case, and उसमें आपको सिविल राइट्स भी हैं, तो उसमें आपको कंपनसेशन वगैरह भी मिल सकता है। तो जो चैप्टर 4 है that deals with all that procedures, और उसके बाद उसमें क्या क्या रिलीफ इंपॉर्टेंट एक रिलीफ है, दैट इज सेक्शन 18। सेक्शन 18 में आपको क्या मिलता है? प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलता है, जो मैंने पहले बात की प्रोटेक्शन ऑर्डर की। सपोज आपके सिर्फ आप कुछ भी ऐसा हो रहा है विच यू फील वेरी थ्रेटनिंग, जैसा मैंने आपको बताया कि सपोज आपके साथ फोर्सफुल चीजें चल रही हैं, आप
या गन रख के, जो मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन, एक आपको इंसिडेंट बताया, वो सब चीजें चल रही हैं, और आपको लगता है कि यू नीड अर्जेंट प्रोटेक्शन, या हस्बैंड मान लीजिए बाहर के लोगों के साथ आ रहा है, आपको एनीथिंग कैन हैपन, तो उस स्थिति में यू कैन आस्क फॉर प्रोटेक्शन ऑर्डर। प्रोटेक्शन ऑर्डर में क्या ऑर्डर मिल सकता है आपको? प्रोटेक्शन ऑर्डर में आपको, अगर आप प्राइमा फेसी कोर्ट को ये कन्विंस करने में सफल हो गए, you are successful that prima facie there is a case of such case where the protection order has to be passed. In that case, the court can tell the preparator, respondent, कि आप इस घर में एंटर नहीं करें, उनके ऊपर एक चेक लग गया। या सपोज आपके एम्प्लॉयमेंट की जगह पे जाके जो प्रिपरेटर है वो गाली गलौज कर रहा है एंड बाकी चीजें कर रहा है, तो उसमें भी आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल सकता है। प्रोटेक्शन ऑर्डर इस सेंस में मिल सकता है कि रेस्पोंडेंट को ये डायरेक्ट किया जा सकता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को नहीं बेचेंगे, उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, उसमें थर्ड पार्टी राइट क्रिएट नहीं करेंगे एंड ऑल दैट। ये सारी चीजें प्रोटेक्शन, मैं बहुत ब्रीफली इसको डील कर रही हूँ बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम। सो प्रोटेक्शन ऑर्डर वो मिल गया। प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलने के बाद अगर वो फिर भी उसको कंप्लाई नहीं करता है, सपोज प्रोटेक्शन ऑर्डर मिला है कि आप यहाँ पे नहीं जाएंगे, इस जगह पे नहीं, या बच्चों के स्कूल में नहीं जाएंगे आप, बिकॉज यू हैव बीन वेरी अब्यूसिव टू द चिल्ड्रन आल्सो, जो वुमन है, और फिर भी आप एंटर करते हैं, इन दैट केस यू कैन कंप्लेन, यू कैन इन्फॉर्म द कोर्ट, और आपकी सोल टेस्टिमनी पे कि इसने प्रोटेक्शन ऑर्डर ब्रीच किया है, उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। तो यू कैन इमेजिन व्हाट अ पावरफुल एक्ट इट इज इन फेवर ऑफ द वुमन। However, there are many misuses. आज हमारा वो सब्जेक्ट नहीं है इसका मिसयूज, एंड अगर टाइम मिला तो आई विल डील विद दैट आल्सो, कि उसको कैसे मिसयूज किया जा रहा है आज के टाइम पे, एंड व्हाट काइंड ऑफ फॉल्स कंप्लेंट्स आर बीइंग फाइल्ड, और उसका जो रिपरकशन है वो क्या हो रहा है। जो बाकी रियल विक्टिम्स हैं, दे आर आल्सो बीइंग अक्यूज्ड ऑफ फाइलिंग फॉल्स केसेस, इसके कारण उनको अच्छे रिलीफ्स नहीं मिल पा रहे हैं, बिकॉज एक सेंस ऑफ एक लोगों के दिमाग में घुस गया है कि बहुत सारी औरतें झूठे, जो कि सच भी है, बहुत सारे झूठे कंप्लेंट्स होते हैं, which is extremely alarming. So next जो अपना ऑर्डर मिल सकता है, that is residence order. रेसिडेंस ऑर्डर, जब भी कोई वुमन के साथ कोई परेशानी होती है, उसके दिमाग में सबसे पहली बात ये आती है कि मैं तो अपने हस्बैंड के घर में रहती हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी, मतलब मैं माँ बाप के घर में जाऊंगी तो परफॉर्म आई विल नॉट बी वेलकम, और अगर वेलकम किया भी तो दो दिन 4 दिन के लिए वेलकम करेंगे। तो इस चीज को डील करने के लिए, ताकि वुमन डिग्निटी के साथ रह सके, रेसिडेंस ऑर्डर का प्रोविजन, उसमें रेस्पोंडेंट, अगर आप रेस्पोंडेंट को रेस्ट्रेन किया जा सकता है कि आप उस घर को नहीं बेचेंगे, शेयर हाउस होल्ड को, उसमें थर्ड पार्टी राइट क्रिएट नहीं करेंगे, और बल्कि उसमें ये भी प्रोविजन किया जा सकता है कि आप उस घर में मत जाइए, और या फिर अगर 5 कमरे का घर है तो एक साइड का रूम है, उस तरफ आपके जो प्रिपरेटर्स हैं, जो रेस्पोंडेंट है या उसकी जो फैमिली मेंबर्स है, वो उस तरफ नहीं जाएंगे, सो दैट वुमन कुड लिव देयर सेफली। और भी बहुत सारी चीजें हैं विच जो ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं, उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस की मैजिस्ट्रेट लगा सकता है। So ma'am, since we are already running out of time, I will quickly ask few questions which is asked by the participants. So one of the question is, let me conclude in 2 lines first, and then you can ask me questions. Okay. So these are the orders, and briefly I'll conclude in 1 minute time that then you have a custody order, because most of the time प्रिपरेटर्स का ये माइंडसेट होता है कि अगर सेपरेट द वुमन फ्रॉम द चिल्ड्रन तो वो डिवास्टेटेड हो जाएगी, देयरफॉर देयर इज अ प्रोविजन ऑफ कस्टडी ऑर्डर, वुमन कैन सीक कस्टडी ऑर्डर, टेम्पररी कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन, शी कैन आल्सो गेट कॉम्पनसेटेड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेक्शन 23 जिसमें इंटरिम रिलीफ मिल सकता है। अगर आपने कोर्ट को ये प्रूव कर दिया कि प्राइमा फेसी ऐसी चीजें हैं, तो आपको बिना रेस्पोंडेंट को सुने हुए भी आपको रिलीफ मिल सकते हैं। ये सारे रिलीफ जो मैंने आपको बताए, राइट, सेक्शन 18 में, 19 में, 20, 21, 22 में। और उसमें प्राइमा फेसी जो बताने, कन्विंस करना होता है कोर्ट को, उसमें दैट इज यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू एक्चुअली प्रूव समथिंग। प्राइमा फेसी बताने का मतलब ये होता है कि आपका जो स्टेटमेंट है, आपका जो कंप्लेंट है, इट शुड एलैबोरेट कि कैसे आप, क्या डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। सिर्फ आपको हवा में ऐसे बोल देने से कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या वायलेंस हुआ है। Can I just request to mute everybody because there's a lot of disturbance? Sir, muted everybody. Yes. Yes. Right? You have to actually अगर आपने प्राइमा फेसी बताने का मतलब ये होता है कि आपने एफिडेविट पे एक पर्टिकुलर फॉर्म में सारा डिस्क्राइब किया है और आपके स्टेटमेंट को पढ़ के ये लग रहा है कि yes, this all has happened, then the order can be passed। उसके लिए रेस्पोंडेंट का वेट करने की भी जरूरत नहीं है, आपको इमीडिएटली इंटरिम रिलीफ मतलब अर्जेंट रिलीफ मिल सकता है।
Now the most there is one more thing I wanted to discuss is कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसीडिंग्स है इसके बारे में एक्ट कहता है कि इट हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 60 days टाइम, बट ये बहुत ही यूटोपियन लगता है, बहुत ही स्वप्नदर्शी है। मतलब ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं है कि 60 days में प्रोसीडिंग्स हो जाए, इंटरिम रिलीफ मिल जाए 60 days में, वही है बहुत है। सो समथिंग हैज टू बी डन टू एंश्योर दैट द एंटायर प्रोसीडिंग्स आर रनिंग क्विकली। और इसमें ये भी प्रोविजन है कि 2 दिन में रेस्पोंडेंट को सर्विस होना चाहिए, 3 दिन में हियरिंग होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। और जब क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं तो कभी कभी कानून पढ़ के भी आते हैं, सम इन्फॉर्म्ड वुमन, एंड उनका एक्सपेक्टेशन होता है क्योंकि उन्होंने कानून पढ़ा है, बट दे डोंट नो द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। सो हमारा ये सोचना है कि मोस्ट ऑफ द एडवोकेट्स आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, द कोर्ट्स आर ओवरबर्डन, और झूठे केसेस जो होते हैं उसके कारण भी बहुत सारे कोर्ट्स ओवरबर्डन हो गए हैं। एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ केसेस आर बीइंग फाइल्ड अंडर दिस एक्ट। So these are the problems. Abhi, before concluding this, I would definitely end this session with certain tips ताकि women जो apprehend कर रही हैं कि there may be certain domestic violence against them and all, वो थोड़ा अपने आप को protected feel करें। जब भी हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि जब भी कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो सबसे पहले वुमन के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वैल्यूएबल्स होते हैं, वो ले लिए जाते हैं। तो इफ यू आर एप्रीहेंडिंग एनी काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, प्लीज कीप योर वैल्यूएबल्स एंड द डॉक्यूमेंट्स, स्पेशली योर मेडिकल सर्टिफिकेट, योर एजुकेशन सर्टिफिकेट, योर पैन कार्ड, आधार कार्ड, अ सेफ प्लेस। ओके, you have to keep some of your friend informed even during pandemic। तो बहुत सिचुएशन खराब है, आपको इन्फॉर्म करके रखना चाहिए कि ऐसा कुछ हो रहा है, so that somebody knows that you are in problem, right? मेरा ये और मैं ये भी हो सकता है कि आपकी जो सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटीज एंड ऑल है, दे शुड हैव सम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स दिस डोमेस्टिक वायलेंस केसेस। थर्डली, आई फॉर्मली बिलीव कि बहुत सारी औरतें के लिए इतना सरप्राइज होता है डोमेस्टिक वायलेंस कि उनके लिए प्रिपरेशन करने का समय नहीं होता। इन दैट केस ऑल द किराना की शॉप है या जो भी मेडिकल शॉप्स हैं, वहां पे हेल्पलाइन नंबर्स डिस्प्ले होने चाहिए। आई थिंक अगर ये सब स्टेप्स लिए गए तो एक डिटरेंट इफेक्ट होगा, क्योंकि लोगों को पता चलेगा कि दिस इज नॉट टू बी टॉलरेटेड। थर्डली, अगर जितने भी डिस्पेंसरीज हैं या क्लिनिक्स हैं जहाँ पे लोगों का इलाज होता है, वहां पे एक इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए कि कोई भी वुमन अगर ब्रूजेस के साथ आती है, कोई फिजिकल वायलेंस का उसके ऊपर मार्क दिख रहा है, तो हर स्टेटमेंट हैज टू बी रिकॉर्डेड। उसको कॉन्फिडेंस में लेके बात करना चाहिए, क्योंकि प्रिपरेटर्स की पहला काम यही होता है कि वुमन को इतना प्रेशराइज करो कि वो अपनी बात कही ना पाए। So all these measures have to be taken. In fact, in the societies also you can display all those numbers, helpline numbers and all. इससे domestic violence नहीं रुकेगा, but at least preparators के दिमाग में ये बात बार-बार देख के ये चलने लगेगी कि this is not tolerated in the society. So with this, there is a time constant. I have to tell so many things, but I would request host to ask me questions, and I would try my level best to answer those questions to the best of my capability. Yeah, Sujit, you can ask me questions if you have any. We have few questions which I'm going to ask you. First question is, on what basis our court decides an application filed for maintenance? For maintenance, maintenance का applications तो और भी acts में file हो सकता है, right? आप 125 में भी maintenance file कर सकते हैं, लेकिन I always prefer कि आप maintenance जो है इसमें DV Act में जब file होता है तो वहां पे सिर्फ ये देखा जाता है कि it has to be just, reasonable and fair. Just, reasonable and fair कब होगा? जब मेंटेनेंस उस लेवल का होगा जिस लेवल पे उसका रेस्पोंडेंट रहता है। सपोज हस्बैंड है तो हस्बैंड का जो स्टेटस है उसको देख करके मेंटेनेंस दिया जाता है, करेक्ट? अगर हस्बैंड की कमाई 3 लाख महीने है तो वो देखा जाएगा कि औरत कौन से स्टेटस पे रह रही थी, एंड सेम स्टेटस हैज टू बी मेंटेन, और यहाँ पे मेंटेनेंस उसका राइट होता है। माइंड इट, सेक्शन 125 में जब आप मेंटेनेंस फाइल करते हैं उस समय वुमन को ये प्रूव करना होता है कि आप एक्चुअली बहुत खराब कंडीशन में, आपके पास जीने का कोई साधन नहीं है, पर यहाँ पे आपको वो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, राइट? सेकेंडली, जब 125 में मैं इसलिए बता रही हूँ कि जाना जरूरी है, बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है 125 वाला कि यहाँ पे करें या वहां पे करें। मेरे हिसाब से तो यू शुड नॉट डू द फोरम शॉपिंग। आपको ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है, वुमन वेलफेयर लेजिस्लेशन है, यू शुड ऑलवेज अप्रोच टू दिस कोर्ट। लेकिन उसमें प्रॉब्लम 125 में भी कि अगर आपके रेस्पोंडेंट ने वहां पे बोल दिया, जो भी अदर साइड है, कि मैं इस औरत को अपने साथ रखने के लिए तैयार हूँ, एंड डिस्पाइट दैट यू आर नॉट गोइंग, तो आपका जो मेंटेनेंस है उसको फिर से कंसीडर किया जाएगा कि आपको मेंटेनेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, करेक्ट? तो उसमें अगर आपके साथ क्रुएलिटी हो रही है और कुछ मारपीट हो रही है तो उसको नहीं कंसीडर किया गया एक वैलिड रीजन कि आप उसके साथ रहने को मना कर दें।
हालांकि अगर उस आदमी का कोई और शादी हो गई है, किसी और के साथ रह रहा है, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड रीजन फॉर अ वुमन टू से नो, आई डोंट वांट टू स्टे विद हिम। सो ये सब चीजें हैं। सो आप जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो एक सिंगल विंडो है जहां पे आपको मेंटेनेंस से लेकर के और कस्टडी से लेकर के प्रोटेक्शन ऑर्डर से लेके हर कुछ मिल जाता है। सो डोंट डू फोरम शॉपिंग, एंड इफ यू आर विक्टिम, you should approach the right court and under the right law. Correct? Any more questions, Sujit? Yes, ma'am. Another question is asked by Priyanka Mathur. She asked, how do we get the court to speed up DV notices to the accused? Many a times it feels like we are running from pillar to post to prove to the court that we have genuine complaints against the perpetrator. Now, also, how does one make NRI accused spouse accountable for DV? That's a very genuine question Priyanka has asked. We have been facing this problem because so far as the service of notice is concerned, though the act says that the entire procedure has to be completed within 60 days, so far as the service of notice is concerned, it is extremely difficult task to do. अभी भी कोई ऐसा कानून मतलब कोई कॉन्क्रीट ऐसी चीज नहीं है जिसके कारण हम इतना स्पीडी चला सकें। और वहां पे जो लोग बैठे हैं एनआरआई, उनकी अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं है इंडिया में एंड ऑल दैट, मेंटेनेंस का ऑर्डर हो चुका है, लाखों लाख रुपए एरियस के रूप में पड़े हुए हैं और जो उनसे रिकवर करना है, बट द प्रोसेस जो है वो सब सीआरपीसी वाले फॉलो करने पड़ते हैं। सो फाइनली ले दे करके बैक टू स्क्वायर हम वही आ जाते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस लेंदी प्रोसीजर्स एंड ऑल, वो होते होते सालों निकल जाते हैं। एंड स्पेशली इन द एनआरआई क्लाइंट्स में तो अभी भी ये डिस्कशन चल रहा है कि हाउ टू डील विद दिस इशू। So this is really a issue which is to be dealt with, और इसके ऊपर legislature को कुछ concrete करना पड़ेगा, right? Okay. Another question is asked by Aarti. Can a complaint under DV Act be filed after divorce? After divorce actually कोई उसमें restriction नहीं है कि आप नहीं फाइल कर सकते। Definitely you can, but अभी जो recent कुछ तो rulings आई है उसमें ऐसा कहा गया है कि after divorce अगर आपकी शादी हो गई है, after divorce you can definitely do that। अगर आप, लेकिन अगर आपने दूसरी शादी कर ली है तो उस केस में आपको there are certain restrictions, you can't do that. Okay. And do you think domestic violence has severe impact on child development? I didn't get the question. Do you think domestic violence has severe impact on child development? Definitely. The problem is woman has been told that you have to succumb to domestic violence for your children. But the point is, if you learn this, that मुझे ये सब बर्दाश्त करने अपने बच्चों के लिए, तो कल को आपका बच्चा भी यही सीखेगा कि ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं, तो होती रहती हैं। Tomorrow he will do the same thing on his wife, और या फिर उसका स्पाउस मारेगा लड़की का, तो उसको लगेगा ये नॉर्मल चीजें हैं। So you have to stand up and you have to say big no, and definitely इसका बहुत बड़ा impact होता है बच्चों के ऊपर, right? इसीलिए आपको day one से बोलना है नहीं, a big no to domestic violence. All right. So one last question I would be asking you. This question, I think most of the viewers, especially the male one, would agree. Do you think there is misuse of this act and courts are now flooded with frivolous complaint of DV and dowry harassment? Even old age parents of relatives are dragged to courts. So what remedies are available to them? So कोई रेमेडी एज सच तो उनके लिए कोई कानून तो बना नहीं है, स्पेशली मेल ओरिएंटेड लॉ जैसे वुमेन वेलफेयर लेजिस्लेशन बना है, बट डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड many a times I have also come across cases wherein a false domestic cases has been filed. In one of our matters, so the woman was actually into adulterous relationship, and when she was caught red-handed, she started threatening her husband that I will implicate you into all such cases. And finally, she rushed to the police station and she lodged a false case. And उसमें उसने ये भी बता दिया कि मेरी ज्वेलरी रख लिए इन्होंने और लौटाई नहीं है। फाइनली इट सो हैपेंड दैट से वो ज्वेलरी लेके एक्चुअली चली गई थी वैष्णो देवी घूमने, एंड व्हाइल कमिंग बैक द ज्वेलरी गॉट स्टोलन इन द ट्रेन। तो जीआरपी में उसने कंप्लेंट फाइल की, तो वहां से हमें वो एफआईआर की कॉपी मिली, एंड दैट ज्वेलरी और यहाँ की ज्वेलरी जो कंप्लेंट थी दोनों टैली कर रहे थे। सो अगर ये झूठे केसेस तो बहुत होते हैं, एंड वी कुड सेव दैट विक्टिम आल्सो, दैट उसमें तो विक्टिम वो आदमी ही था, दैट मेल वाज अ विक्टिम। तो हमने फिर कोर्ट को कन्विंस करके उसमें उस लेडी के खिलाफ भी एफआईआर करवाया फॉर द रीजन दैट समबडी हैज एंटर्ड द हाउस टू कमिट एन ऑफेंस, जबकि एडल्ट्री तो पनिशेबल ऑफेंस होती नहीं है। बट ये सब हुआ तो डेफिनेटली ये केसेस होते हैं, और इसके कारण जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही सीवियर होता है। जो रियल विक्टिम्स हैं, वुमन है, उनको भी डाउट
किया जाता है उनके ऊपर भी, एंड कोर्ट्स भी ओवरबर्डन हो जाती है. तो मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है कि प्लीज डोंट डू दैट, एंड एडवोकेट्स हैज टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इनटू डूइंग ऑल दिस, इनटू सिक्योरिंग ऑल दिस. और सो फार एज उनको उनको उनके लिए रेमेडी क्या है, दैट क्वेश्चन. मुझे लगता है कि हमारे देश में जो एफिडेविट पे झूठ बोलने का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब एकदम बोल्डली लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि पर्जरी रिलेटेड जो लॉ है वो तो भी बहुत वीक है. देयर आर वेरी फ्यू केसेस जहां पर्जरी पता होता है कि झूठ बोल रहे हैं, एफिडेविट पे झूठ बोल रहे हैं, फिर भी एक तो कोर्ट्स हमारे इतने ओवरबर्डन है कि वो पर्जरी वर्जरी को बहुत सीरियसली लिया ही नहीं जा रहा है आजकल. तो अगर हम पर्जरी रिलेटेड लॉ, मतलब एफिडेविट या शपथ पत्र पर झूठ बोलने के कानून को थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दें, और इसमें कोई प्रोविजन ऐसा लेके आए कि इन ऑब्वियस केसेस, जैसे अभी मैंने बताया जिसमें उसकी ज्वेलरी एक्चुअली वहां पे चोरी हो गई एंड शी हैज लॉज्ड अ फॉल्स कंप्लेंट अगेंस्ट द हस्बैंड, ऐसा कुछ है तो उसमें वुमन, देयर शुड बी प्रोविजन टू प्रोसिक्यूट द वुमन आल्सो. क्योंकि ये जो सोसाइटी है इसमें 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 ऐसा ऐसा हम गारंटी नहीं ले सकते कि हमेशा एक औरत ही विक्टिम है. दे मे बी द केसेस व्हेन द मेन आर एक्चुअली विक्टिमाइज्ड, एंड उनके लिए भी कुछ लॉ होना चाहिए. एंड मुझे लगता है ये पर्जरी वाला अगर अगर इशू को ठीक से डील किया जाए एंड इस टाइप के केसेस को स्ट्रिक्टली डील किया जाए, तो दैट कैन गिव अ मैसेज टू एवरीबॉडी, in my opinion. Okay, that's it Yes, from very well, ma'am. I thank you, ma'am, on behalf of all the participants for joining us and sharing your insights on this issue. And we wish to invite you with some other interesting topic very soon. Yeah, thank you, Sujit, so much for giving me this forum and giving me an opportunity to discuss such a burning issue. But मुझे बहुत कुछ बताना था which I could not because of the time constraint you have put on me, right? 30-40 minutes you can't explain everything. Thank you so much again. Thank you so much to the viewers also. I hope this was an informative session. There are certain developments regarding law. हमारे यहाँ पे law रोज develop होता है, रोज उसमें नई चीजें आती हैं. So I would request कि अगर कोई कुछ case laws वगैरह मैंने share किए हैं host के साथ, if you have all those, so kindly share with all the viewers. That would be helpful to the students and the victims also. Thank you so much again for this session. Very well. And to our participants, our sincere apology for conducting the webinar on Zoom application. We are aware that we should not be encouraging Chinese application and products. However, we already purchased this membership, so we conducted this webinar on Zoom, but we are intending to shift it to some other application very soon. And I thank each participant for joining our webinar. If you need further assistance, you may contact Insights Bharat on Facebook, Instagram, and follow us for further updates. Now, I request all the participants to bear with us for 2 minutes. We will be ending this session by playing a video posted on the Twitter account of Secretary General of United Nations. This will give us an idea as to how this issue has affected the rights of women globally. Please give me 2 minutes. The COVID-19 pandemic is causing untold human suffering and economic devastation around the world. I recently called for an immediate global ceasefire to focus on our shared struggle to overcome the pandemic. I appealed for an end to violence everywhere now. But violence is not confined to the battlefield. For many women and girls, the threat looms largest where they should be safest, in their own homes. And so I make a new appeal today for peace at home and in homes around the world. We know lockdowns and quarantines are essential to suppressing COVID-19, but they can trap women with abusive partners. Over the past weeks, as economic and social pressures and fear have grown, we have seen a horrifying global scale of domestic violence. In some countries, the number of women calling support services has doubled. Meanwhile, healthcare providers and police are overwhelmed and understaffed. Local support groups are paralyzed or short of funds. Some domestic violence shelters are closed, others are full. I urge all governments to make the prevention and redress of violence against women a key part of their national response plans for COVID-19. That means increasing investment in online services and civil society organizations, making sure judicial systems continue to prosecute abusers, setting up emergency warning systems in pharmacies and groceries, declaring shelters as essential services, and creating safe ways for women to seek support without alerting their abusers. Women's rights and freedoms are essential to strong, resilient societies. Together, we can and must prevent violence everywhere, from war zones to people zones,
as we work to beat COVID-19. Thank you so much, ma'am, once again for coming on this Insights Bharat and sharing your insights on this particular topic. Thanks to you as well, Sujit, and the team of Inside Bharat. Thank you all the participants, and we wish to see you all very soon.